امام حسین سے عشق کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ امام حسین سے محبت کرنے والوں کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی جان و مال کسی چیز کی فکر نہیں کرتے ہیں، سب کچھ انہی پر قربان کرتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے وہ بچہ اور ادھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، ایک صحابی تحفہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تحفہ کیا؟ ہرنی کا بچہ۔ اس کا بچہ ہرنی کا بچہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، اور لینے آنے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ میرے مصطفیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی وقت حضرت امام حسن تشریف فرما لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن کو ہرنی کا بچہ ہے میرے آقا نے دے دیا۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت امام حسن اس ہرنی کے بچے کے ساتھ کچھ دیر کھیلتے رہے، کھیلتے کے بعد پھر گھر پر چلے گئے۔ جب گھر پہ پہنچے وہاں حضرت امام حسین تشریف فرما تھے۔ امام حسین نے پوچھا اے میرے بھائی ہرنی کا بچہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ امام حسن نے کہا کہ نانا جان سے لے کر آئے ہو۔ امام حسین نے کہا مجھے بھی چاہیے۔ امام حسن نے کہا تمہیں چاہیے ہو تو نانا جان سے لے اور کھیلنا ہو تو اسی سے کھیل لو۔ کہنے لگے نہیں مجھے دوسرا ہی چاہیے۔ التجا کرنے لگے، نانا جان کی طرف پہنچے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں نانا جان بھائی کو ہرنی کا بچہ دیا مجھے بھی دیجیے۔ حالات یہاں تک کے بتائے جاتے ہیں کہ کچھ ہی لمحہ باقی تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ جنگل کی جانب سے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک ہرنی دوسرے بچے کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا بچہ ہے، اسے بھی قبول کر لیجئے۔ اور اس سے پہلے جو صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں میرا دوسرا بچہ تھا وہ بھی لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ وہ بھی میرا بچہ تھا اور یہ بھی ہمارا بچہ ہے، ہم اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن امام حسین کی آنکھوں میں آنسو یہ ہم برداشت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے آل رسول محبت، ہم ہی نہیں بلکہ جانور بھی مصطفیٰ کی آل سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تو یہی تو فرماتا ہے قُلْ لَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب فرما دیجیے ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے ہیں، اگر مانگتے ہیں تو اہل بیت سے محبت مانگتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا کب پتہ چلے گا؟ جب تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ علم کی دولت ہوگی تب جا کے عشق مصطفیٰ ہمارے درمیان جب علم کی دولت ہوگی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے اولاد دے دی تو دل میں سوچتے ہیں کس کو ڈاکٹر بنا دیں، اور حسن و جمال والا دے دیا تو اس کو گورنر بنا دیں گے، ڈاکٹر بنا دیں گے، پائلٹ بنا دیں گے۔ یہ کیفیت رہتی ہے، کبھی دل میں یہ نہیں سوچا کہ ہم بچے کو عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے۔ جب حافظ قرآن بنائیں گے مصطفیٰ کی شریعت کا یہ پیغام ہمیں دے گا۔ حافظ قرآن بنائیں گے تو خدا کا کلام تلاوت کریں گے۔ ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہماری زبان مادری زبان اردو ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن مقدس میں رب ہم سے کیا کلام کر رہا۔ ہم نے صرف عربی پڑھی، اس کی عربی کا معنی جب ہم جبھی تو سمجھیں گے جب ہمیں اردو آتی ہے۔ ہم نے تو صرف یہی جانا ہے کہ قرآن جب پڑھی جائے، قرآن خوانی ہو جب قرآن پڑھ لیا جائے، مکان کی ابتدا ہو تو قرآن پڑھ لیا جائے، 40ویں کے معاملات ہیں جب قرآن پڑھ لیا جائے، کہیں قرآن خوانی کے معاملات ہیں جب قرآن پڑھ لیا جائے۔ یہی ہم نے سیکھا ہے لیکن یہ پیغام ہم نے نہیں سیکھا ہے رب ہم سے کیا کلام کر رہا ہے، رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کہاں پہ ہمیں جائز کا حکم دے رہا ہے، کہاں پہ ہمیں ناجائز کا حکم دے
दे रहा है, कहाँ पे मुस्तफा से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा है, कहाँ पे आले रसूल से मोहब्बत का हुक्म दे रहा है, कहाँ माँ बाप का हुक्म दे रहा है, कहाँ पे माँ बाप का आदर किया जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, आज यही वजह है माँ बाप हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, माँ बाप की अजमत को हम नहीं समझ रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज यही वजह है माँ बाप की अजमत से हम महरूम है। मेरे इस्लामी भाइयों, तुम्हें मालूम नहीं है, जो इंसान औलाद माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता है, मेरे इस्लामी भाइयों, वो दुनिया में भी खसारे में रहता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हमने सिर्फ यही जाना है कि हम दुनिया की दौलत हासिल कर लें, लेकिन नबी का पैगाम हम अपनी औलादों तक नहीं पहुंचाएंगे। याद रखो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, एक औलाद कईयों मर्दों को जहन्नम में ले जा सकती है। अगर बेपर्दा औरत है तो वो अपने मर्द को भी जहन्नम में ले जा सकती है, बेशक सुभान अल्लाह अपने बाप को भी ले जा सकती है, अपने भाई को भी जहन्नम में ले जा सकती है, अपने बेटों को भी जहन्नम में ले जा सकती है। क्या समझते हो इस्लाम का पैगाम? क्या यही हमने जाना कि सुबह से लेकर शाम तक हमने अपने औलाद की परवरिश कर ली, यही अपनी जिंदगी का दस्तूर समझा? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का बहुत ही मकसद है, अगर हमने अपनी जिंदगी के हुकूक को अदा ना किया तो बरोज़े महशर में रब की बारगाह में उस वक्त हमसे सवाल किया जाएगा। अगर तो उस वक्त तुमसे सवाल किया गया कि तुम दुनिया में क्या करते रहे, तो उस वक्त यही कहोगे, मौला हम अपनी औलाद की परवरिश करते रहे। याकूब अलैहिस्सलाम को बुला कर लाओ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जब बुला कर लाया जाएगा तो रब्बे कायनात फरमाएगा, याकूब अलैहिस्सलाम औलाद की मोहब्बत में इतना रोए कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई है, लेकिन उसके बावजूद रब की बंदगी करना नहीं। ये मेरे इस्लामी भाई, तमाम चीजों पर गौर व फिक्र करो और माँ बाप के हुकूक को अदा करो। मेरे इस्लामी भाइयों, जो इंसान माँ बाप पर जुल्म और ज़ातिया करता है वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज हम परेशान हैं, नहीं कोई मुसीबत आई कहने लगते हैं यार क्या करें, बहुत ही परेशानी के आलम में कोई भी इंसान साथ नहीं दे रहा। मेरे इस्लामी भाइयों, तुम्हें मालूम नहीं है, किसी भी तरीके की मुसीबत आए हो, मेरे इस्लामी भाइयों, हम एक पैगाम कह देते हैं कि एक शख्स था, इतनी बीमारी उसके जिस्म में आ चुकी थी कि डॉक्टर ने जब उसके चेकअप किए थे तो चेकअप के जरिए से मामला पता चल रहे थे ये मेहमान कुछ ही दिनों। जब डॉक्टर ने चेकअप किए जिससे मालूम हुआ कि ये मेहमान कुछ ही दिनों का है, तो उस नौजवान के दोस्तों को बुलाया उस डॉक्टर ने, और उस डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारा जो दोस्त है कुछ ही दिनों का मेहमान है, अगर इसकी जो भी आरज़ू हो तो इनकी पूरी तो कर दो। फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास से उसके दोस्त आए, अपने दोस्त से मिले आकर उस दोस्त ने कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो उस दोस्तों ने कहा कि कुछ नहीं कहा, बस हालात बता रहे थे कि दवाई इस तरीके से खाना है, दवाई उस तरीके से खाना है, इस चीज़ का परहेज करना है। तुम्हें मालूम नहीं कि हमने सब कुछ सुन लिया है। तो वो कहने लगा क्या सुन लिया है, तो कहने लगा जो भी सुना है वो अब रहने दो, बस मेरा ये काम और कर लो। पूरी जिंदगी तुम मेरा साथ देते रहे हो, गुनाह में साथ देते रहे हो, मक्कारी में साथ देते रहो, लापरवाही में साथ देते रहे हो, लेकिन एक साथ और है और उसके दरमियान ज्यादा मुसीबत रहती है। उन्हीं के लिए आज ये पैगाम है मेरे इस्लामी भाइयों, जिनके माँ बाप आज जिंदा हैं, हयात हैं, बड़े मुकद्दर वाले हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, जब कोई नौजवान कहता है अपने बड़ी कोशिशें मेरे साथ की हैं, आज तुम मेरे घर पर चले जाओ और मेरी वालिदा को बुला कर लेकर आओ, वो दोस्त कहने लगे कि क्या वजह है, आज तुम्हें अपनी वालिदा को याद आ गई? तो वो कहने लगा और कुछ जरूरत नहीं, हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरे घर पर चले जाओ, मेरी वालिदा को बुला कर लेकर आओ। मेरी वालिदा तन्हा होगी, नाबीना है, चल नहीं सकती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, बस उनको जिंदगी में एक सहारे की जरूरत है। हम जब तक रहे अपनी वालिदा का सहारा बने रहे, लेकिन जब इस वक्त से हम हॉस्पिटल में आए हैं, मेरी वालिदा परेशानी के आलम में पूरी जिंदगी गुजार रही है, मेरे घर पर चले जाओ। मेरी वालिदा बेचैन होगी, अपनी औलाद
की मोहब्बत में तरस रही होंगी, तुम मेरी घर पर चले जाओ। वो दोस्त जाते हैं, जाने के बाद उसकी वालिदा को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में लेने के बाद जब वो मरीज नौजवान अपनी वालिदा को देखता है, देखने के बाद उसकी आंखों को देखता है, उसका दीदार करता है, फिर वो नौजवान अपने दोस्तों से कहता है कि जाओ एक बर्तन लेकर आओ। जब बर्तन लेकर आता है तो वो कहता है कि एक लोटे में पानी लेकर आ जाओ। जब वो लोटे में पानी लेकर आए, गौर से सुनो, जब वो लोटे में पानी लेकर आता है और लाने के बाद वो नौजवान मरीज अपने वालिदा के कदमों को धुलना शुरू करते हैं। धोते 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 यहाँ तक कि पूरे पैरों को उसने धुल लिया। मामला यहाँ तक कि आपको मालूम है कि जिस मरीज का मामला यहाँ तक थे कि डॉक्टर ने ये कह दिया था कुछ दिनों का ये मरीज है, लेकिन आज वो नौजवान अपनी वालिदा के पैरों को धुल रहा है। धुलने के बाद जब उसने अपनी वालिदा के कदमों को धुल लिया, धुलने के बाद उस नौजवान के दोस्तों ने कहा कि इस पानी को बाहर फेंक दिया जाए। लगता है कि मेरे दोस्त की तमन्ना रही होगी कि हम अपनी वालिदा को गुस्ल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका जिस्म तमाम आज़ा इसके कमजोर हो चुके हैं, उसके हाथ लगता है उसके कदमों के ही तक पहुंच सकते थे, इसलिए अपनी वालिदा के कदम ही धुल रहा है। तब वो नौजवान कहता है, ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, इस पानी को बाहर मत फेंको। वो कहता है कि इस पानी को ऊपर उठाकर लेकर आओ। जैसे ही वो नौजवान उसके दोस्त पानी को ऊपर लेकर आते हैं तो वो नौजवान मरीज उस पानी को लेकर पूरा पी जाता है। पीने के बाद वो डॉक्टर को बुलाता है, कहता है डॉक्टर साहब, इससे पहले तुमने चेकअप किए थे तो मरीज का मामला और थे, लेकिन अब दोबारा चेकअप करो। तो डॉक्टर कहता है लगता है इसका फ्यूज ढीला हो चुका है, लगता है ये परेशान हो गया है, अब इसका जिस्म काम करना तो पहले ही बंद कर चुका था, लगता है इसका दिमाग भी करना बंद हो चुका है। तो वो मरीज कहता है डॉक्टर, पहले जो तुमने चेकअप किए थे वो मामला जो भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब करो। तब जब दोबारा डॉक्टर दोबारा चेकअप करता है तो चेकअप करने के बाद जब वो चेकअप को देखता है तो डॉक्टर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि इससे पहले जब हमने चेकअप किए थे तो तमाम इसके खिलाफ जा रहे थे, तमाम बीमारियां इस पर गालिब थी, लेकिन हालात यहाँ तक अब पहुंच चुके हैं जो पहले बीमारियां थी अब वो इसके जिस्म में पाई नहीं जाती है। वो डॉक्टर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इससे पहले मेरी मशीन वो भी पहले सही थी, अब भी सही है, लेकिन वजह क्या है, अब जो मामलात हुए हैं। तो मरीज कहता है परेशान ना हो, ऐ डॉक्टर तुम अपनी मशीनों पर ताज्जुब मत करो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और जन्नत में कोई बीमारी नहीं होती है, इसलिए हमने अपनी माँ के कदमों को धो लिया है और धोने के बाद उसके पानी को मैंने पी लिया है। रब ने माँ के कदमों के सदके से मेरी बीमारियां दूर। बेशक सुभान अल्लाह। माँ के कदमों की वजह है कि उसकी बीमारी दूर।